Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy, and today I have brought this class 12th topic. This is sexual reproduction in flowering plant. Okay, so this is our first lecture on this topic. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि how does the flower reproduce. ठीक है, फ्लावर्स के नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है. सो वी विल डील विद दैट इन दिस चैप्टर. ओके. So basically, when we see, when we study about the sexual reproduction in plant, we study about angiosperm. Why angiosperm? Because angiosperms they are the flowering plant. अगर आपने plant kingdom पढ़ा है, ठीक है? So plant kingdom में the first thing angiosperm they are the flowering plant. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस एंजियोस्पर्म ही प्लांट पे हम स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज द फ्लावर. ठीक है, सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और स्पेशली एंजियोस्पर्म बिकॉज दे आर द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, सो व्हाट इज द फ्लावर? इट इज मोस्ट brightly colored and most attracted. That means even the butterflies, insects, all are attracted on this colorful flowers. So this is only the reproductive structure. So flower जो है सबसे fascinating organ है पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का. ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जैसे कि आप देखते हो नीम, मैंगो, गवावा, जितने भी प्लांट जो आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखते हो दैट फ्लावरिंग प्लांट ये पूरे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं. ठीक है, सो इन दिस वी विल सी दीज फ्लावर they are occupying or they have the reproductive structure. ठीक है, मेल reproductive structure and the female reproductive structure that is all present in this flower, which is the most brightly colored organ of this plant. Okay, so we know reproduction is what? It is something which helps in the continuation of the generation of the species. Okay, that means if this reproduction process stops, that means the generation will not go on. Okay, so when we are studying about the sexual reproduction in plant, so what is the first thing? Reproduction, that reproduction allows the continuity of species. This thing we should keep in our mind. So the continuity of the species, जो continuation होता है species का generation after generation, that is all because of the reproduction. Because the name itself, reproduction का मतलब है reproduction, that means production of something or the organism again and again. Okay, so generation after generation we can see the new individuals we are getting. So that is all because all the living organism, any living organism that has taken birth on this earth has to die. That means senescence period के बाद किसी भी organism का death होना है. Firstly maturity level. ठीक है, पहले जुवेलाइन होता है, उसके बाद मैच्योरिटी लेवल या रिप्रोडक्टिव लेवल पे पहुंचते हैं ऑर्गेनिजम्स. आफ्टर दैट सेनेसेंस पीरियड दे रीच and at the end of the senescence that leads to death. So if organisms का death हो जाए, so how will the number grow? So the first thing, the reproduction that helps in the continuation of the species. Okay, so next, flowering plant shows sexual mode of the reproduction. Here asexual reproduction does not take place. Asexual reproduction होता है लेकिन lower plants में, lower organism, lower plants में होते हैं, but higher plant जो flowering plant है उनमें sexual mode of reproduction होता है. Okay, so if we study about the reproduction in plant, so it mainly reproduction की बात अगर flower में या plant में हो, plant में अगर हम लोग बात करते हैं reproduction की, so ये पूरा रोल कौन प्ले करता है? flower. So reproduction in the flower अगर आप पढ़ते हो तो पूरा जो स्टोरी है ये पूरे फ्लावर पे बेस्ड होता है. ठीक है, then which has both the male and the female gametes. तो फ्लावर ही है जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, दैट फर्दर लीड्स टू दी फर्टिलाइजेशन एंड देन द न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. सो ऑल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जितने भी प्लांट के फ्लावर के पार्ट होते हैं, ओके, सो दैट हेल्प्स इन दी, that aids in the process of reproduction. That means it helps in the process of reproduction or the sexual reproduction in the flower. So we will see how the different parts of the flower
will help. और कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं, कौन मेन रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, कौन एसेसरी रोल प्ले करता है. ओके, सो फ्लावर वी नो, फ्लावर जो कि स्टेम का पार्ट है, वी सी फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम, और यू कैन से इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. फ्लावर क्या है, एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है, बिकॉज फ्लावर वी गेट ऑन द स्टेम ओनली. सो विच हैज अ फंक्शन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है फ्लावर. Okay, so this flower act as a reproductive organ and produce the ova. That means here they will produce either pollen or the female part will produce the ova cells. Okay, so that further undergoes development or new plant can be grown. सो अ टिपिकल, एक सिंपल अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं, सिंपल ले लो मैंगो की बात. सो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं. ठीक है, 4 वर्ल्स मीन्स एक फ्लावर का 4 पार्ट होता है जो मेन रोल प्ले करता है इस रिप्रोडक्शन में. फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकेंड वन कोरोला. Okay, so calyx and corolla, what are that? We will see. The next is androecium, which is a male reproductive organ. ठीक है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंड दैट इज टुगेदरली नोन एज स्टेमेन. उसी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमेन भी बोल सकते हो आप, एंड्रोशियम ऑल्सो. देन द नेक्स्ट पार्ट इज गाइनोशियम, और विच इज पिस्टिल यू ऑल्सो कैन से. ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आप बोल सकते हो पिस्टिल. ओके, सो वी सी 4 वर्ल्स आर देयर. ठीक है, किसी भी फ्लावर का 4 वर्ल्स होते हैं. फर्स्ट वन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. और इसी पार्ट्स पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दैट दीज कैलिक्स एंड कोरोला दे आर एसेसरी. ये हेल्पिंग ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्शन में कोई मेन रोल प्ले नहीं करता, बट एसेसरी रोल इट प्लेज एसेसरी रोल इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो कैलिक्स और कोरोला का एसेसरी सपोर्टिंग रोल, और यू कैन से सपोर्टिंग रोल प्ले करता है. ओके, सो दैट मीन्स दे डू नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन बट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, और किसी तरह से प्लांट को हेल्प करता है. सो कैलिक्स, यू नो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कैलिक्स? वी कैन कॉल इट सेपल्स ऑल्सो. ओके, कोरोला को हम पेटल्स भी बोल सकते हैं. In the same way, androecium as stamen and gynoecium as pistil. Okay, so in detail we will see the structure of this flower. Okay, this is the simple structure of a flower which is containing all the 4 whorls. जितने भी whorls होते हैं plant flower के, that all can be seen over here. Okay, first part that you can see, this base जिस पे पूरा flower है, okay, this can be called as receptacle. You can call it receptacle. ठीक है, और इस पार्ट को आप ये भी बोल सकते हो थैलेमस. ठीक है, THALLAMUS, thalamus also. And this part, the stalk one, you can call it pedicel. Okay, you can call it pedicel. So this is thalamus, pedicel, or this part you can call as receptacle. उसके बाद ये हो गया आपका बेस जिस पे पूरा फ्लावर है. The first whorl, जिस पार्ट को हम लोग whorl बोलते हैं. So what are the whorls over here? So the first whorl is what? This part, as you can see, the greenish part. Okay, ये green part देख रहे हो? So these are sepals. इसी को बोलते हैं calyx. इसी को और क्या बोलते हैं? Calyx. We call it calyx. Okay. Next जो petals, colorful part आप देख रहे हो, ये colorful part आपको दिख रहा है. These are called petals. ठीक है, इस कलरफुल पार्ट्स को आप क्या बोल सकते हो? पेटल्स, और यू कैन कॉल ऑल्सो एज कोरोला. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कोरोला. तो ये कैलिक्स और कोरोला सपोर्ट करता है, ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं एग्जैक्ट. दे डू नॉट हेल्प, दे जस्ट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. कोई मेन काम नहीं करता है, सिर्फ सब फ्लावर को जब बर्ड कंडीशन में रहता है कोई भी फ्लावर, तो उसने प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये सेपल्स. And this colorful petals, they attract the insects for the pollination or transfer of the gametes, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. Okay, then this sepals can be called as the first whorl. Petals आपका second whorl हो गया. Third whorl is the stamen. ठीक है, as you can see this part. Okay,
So this part if you can see, this is the topmost one is anther और जिस stalk के साथ attach है that is known as filament. So this anther and filament, okay, so this part you can see, this is the anther part. ठीक है, तो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये एंथर है, और दिस स्टॉक, ये जो स्टॉक है, दिस होल स्टॉक पार्ट, दिस इज नोन एज फिलामेंट, और टुगेदर उसी को आप बोलते हो स्टेमेन. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज we can see the female reproductive part over here. Here is the female reproductive part. The first one is stigma, then style, then ovary. This is the stigma part. ये आपका स्टिग्मा पार्ट है फ्लावर का, ये है स्टाइल पार्ट, एंड देन द सेंट्रल पार्ट इज द ओवरी विच कंटेन ओव्यूल्स. ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पार्ट को टुगेदर आप क्या बोलते हो, कार्पेल और पिस्टल और गाइनोशियम. सो दिस इज द थर्ड होल. ये आपका सेपल्स फर्स्ट था, पेटल्स वॉज द सेकेंड वर्ल, थर्ड वन इज द स्टेमेन एंड फोर्थ वन इज द कार्पेल. तो ये चार वर्ल्स है हमारे फ्लावर के. एक सिंपल फ्लावर का चार वर्ल्स होता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये कार्पेल और ये स्टेमेन, ये मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है फ्लावर के, और सेपल्स और पेटल्स एक्सेसरी है, मींस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है. ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. द फ्लावर कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. Just we have seen what is we have studied about calyx. Let's see in detail what is calyx and what does it do. As you can see the same sepals लिखा हुआ है यहाँ पे, green part. ठीक है, नॉर्मल अगर आप किसी फूल को लेते हो उसके बेस में जो ग्रीनिश कलर के देखते हो आप सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आइदर यू कैन कॉल सेपल्स और यू कैन कॉल कैलिक्स. ठीक है, सो इट इज दिस कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल. ठीक है, सबसे पहले ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है, और आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट वर्ल है. इट कंप्राइजेस ऑफ द यूनिट्स कॉल्ड सेपल्स. ओके, एंड इन द व्हेन द फ्लावर इज इन द बर्ड स्टेज, जब फूल लाइक रोज अगर पूरी तरह से खिला नहीं है, तो जब बर्ड कंडीशन में है तब यही सेपल्स उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है. ओके, सो इन द बर्ड स्टेज द कैलिक्स encloses the rest of the flower. पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखने का काम इसी कैलिक्स का है जब वो बर्ड स्टेज में हो, फ्लावर बर्ड स्टेज में हो. नेक्स्ट, कैलिक्स कैन आइदर बी प्रोमिनेंट और एब्सेंट. किसी किसी फ्लावर में नहीं भी प्रेजेंस हो सकता है, किसी फ्लावर में आप प्रॉपरली अच्छे से देख सकते हो कि कैलिक्स है. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज corolla, which is the second whorl. It is the second whorl of the flower and it contain petals and they are colored and attract insect. ठीक है, तो इस petals का काम क्या होता है, attracting insect. इंसेक्ट्स कलरफुल पेटल्स को देख के उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, सो दे हेल्प्स इन अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे. अभी तक जो बात की हम लोगों ने सेपल्स और पेटल्स के बारे, वो एसेसरी रोल प्ले करते हैं. ये है हमारा एंड्रोशियम विच इज प्लेइंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रोल. ठीक है, तो ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का. दैट इज इट इज दी we can say it is the male reproductive part है. Then stamen is the third whorl. ये थर्ड नंबर पे आता है. किसी भी फ्लावर को अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके सेपल्स को हटाते हैं, फिर पेटल्स को हटाते हैं, उसके बाद एंड्रोशियम, दैट इज यू कैन से इट एज स्टेमेन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट, ईच स्टेमेन, हर एक स्टेमेन में भी दो पार्ट्स होते हैं. वन इज एंथर एंड द अदर इज फिलामेंट. Okay, so if this is a structure of stamen, so you can see this is a two lobed structure. ठीक है, दो इस तरह से lobed होते हैं. ओके, ये लोब है जिसको हम एंथर बोलते हैं. ओके, दिस इज नोन एज एंथर. और ये जिस स्टॉक से अटैच होता है, द स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट. ठीक है, ये स्टॉक लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है, इट इज नोन एज फिलामेंट. Okay, so together this filament and anther, it is known as stamen. क्या बोलते हैं उसे, stamen बोलते हैं. Together this is known as stamen. So the same structure you can see, the anther,
दिस इज द फिलामेंट, टुगेदर वी कॉल इट स्टेमेन। ओके, सो एक स्टेमेन को अगर आप क्रॉस सेक्शन वाइज कट करोगे, इफ यू जस्ट कट इट, ठीक है, एक स्टेमेन ले लिया बाइलोब स्ट्रक्चर, उसे बीच से अगर कट करेंगे, ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन सी दिस, इट इज हैविंग sac like structure, and in that there is pollen grains present. Okay, we will discuss about these pollen grains also in detail in the next slides. Firstly we have to keep in mind that stamen के दो पार्ट होते हैं, anther और filament, ठीक है, और ये filament जो है proximal पार्ट होता है किसी भी stamen का। तो फिलामेंट क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये अटैच होता है फ्लावर के कोरोला के जस्ट बाद आपका ये फिलामेंट अटैच रहेगा वर्ल से। ओके, सो द टिप ऑफ द एंथर इज सपोर्टेड बाय फिलामेंट। सो देख रहे हो ये एंथर है, तो एंथर को सपोर्ट देने का काम ये फिलामेंट करता है, एंड दिस फिलामेंट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, आप बोल सकते हो इट इज सिलेंडर इन शेप, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और it just provides support to anther. Next, we will see what is anther and what is filament. Okay, as you can see, and this part is the anther, ठीक है, and this is the filament, stalk part. ये filament stalk वाला part देख रहे हो आप, और ऊपर में जो yellowish part देख रहे हो that is the anther. उसी anther को बहुत deeply study किया गया है. Then we can see there are various pores, कुछ microspores है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे स्पोर्स है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज एंथर, ये एंथर जो आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस एंथर, ठीक है, ये एंथर कैसा दिखता है, सो इट इज द 4 लोब्ड सैक लाइक, 4 लोब्स होते हैं इस एंथर के, ठीक है। फर्स्टली यू कैन सी इट इज 4 lobe sac like structure. Why it is saying 4 lobe? We will see that firstly ये bilobed होता है, और इस bilobe के और divisions होते हैं, that means थेका में वो divided होता है। Okay, so it is responsible for pollen formation. तो इसी lobes के अंदर pollen formation होता है। Okay, we can see it in detail. सिंपली अगर इस एंथर को बहुत डिटेल में देखा जाए, तो ये जो सिंपल इनका स्ट्रक्चर है, बाई लोब स्ट्रक्चर है, इट इज बाई लोब्ड। ओके, वी कैन जस्ट मेक अ लिटिल बिट करेक्शन, ये बाई लोब्ड कर सकते हैं। ओके, बाई लोब, पहले तो ये बाई लोब्ड है, उसके बाद इसके डिविजन्स जब हमें दिखेंगे वो थीका दिखेगा उनका। दैट मीन्स इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन वाइज कट करते हो, जस्ट कट इट क्रॉस सेक्शन वाइज इस तरह से, तो आपको देखने मिलेगा इस तरह से थेका वाइज में ये डिवाइडेड है, ठीक है, और बीच में एक पार्टीशन होता है, ये पार्ट देख रहे हो, दिस डिवीजन जो आपका फिलामेंट की तरफ जाता है, सो दिस डिवीजन, यही डिवीजन है ये। ओके, दिस सेपरेशन इज देयर, और ये एक साइड का लोब है, ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो एक साइड वाला लोब है ये, दिस इज द वन साइडेड लोब, और दूसरा वाला लोब इस साइड में है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट लोब, और ये है ये टुगेदर सेकेंड लोब। ओके, ये दोनों मिला के आप बोल सकते हो दिस टू फर्स्ट लोब, दिस टू द सेकेंड लोब, ठीक है, तो टोटल आपके 2 लोब्स हो गए। उसके बाद देखोगे देयर इज अ पार्टीशन, यू कैन सी द सेपरेशन, ये पार्ट अलग है, नीचे वाला लोअर पार्ट अलग है, सो यू कैन कॉल इट फर्स्ट थेका, आप क्या बोल सकते हो, थेका बोल सकते हो। ओके, सो ये थेका है, TH से डिनोट कर सकते हैं, ये भी अनदर थेका है, सो एक लोब में 2 थेका है, ठीक है, एक लोब में 2 थेका होता है, ठीक है, और नेक्स्ट वन सेकेंड लोब में भी अगेन वी कैन सी हियर दिस वन एंड द अनदर वन, सो again 2 theka. So together we can say there is the anther is 4 lobe, it is bilobed and 4 theka, total 4 theka, 2 in each lobe, हर लोब में 2 theka will be seen. Okay, next part आ जाते हैं filamentous part, ठीक है, जो ये फिलामेंट वाला पार्ट आप देख रहे हो, this filamentous part, okay,
सो ये जो फिलामेंट है ये आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है, एंथर के नीचे होता है. ओके, सो दिस अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड अटैच टू द एंथर. ये कहाँ पे अटैच है? एज यू कैन सी द अटैचमेंट इज एट द एंथर. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, एंथर का अगर इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप काटते हो, then you can see microsporangia. As you can see, microsporangia. ठीक है, and which further forms pollen sac. उसी microsporangia में pollen sac होता है and the pollen sac contain pollen grains. So सबसे पहले आप अंदर देख रहे हो microsporangia. ठीक है, microsporangia के अंदर क्या होगा? pollen sac होगा. ठीक है, pollen sac के अंदर क्या होगा? pollen grains होंगे. Okay, so these things you have to keep in mind. Microsporangia will have pollen sac. So this you can call it as microsporangia. Round circular form में दिख रहा है. उसके अंदर pollen sac होंगे जिसके अंदर pollen grains बनेगा. Okay, you can see the pollen grains will be stored over there. इस चीज को डिटेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटली. Okay, let's see what next. So when we are studying about the development of the flower, reproduction की बात जब करते हैं तो मेन प्लांट बॉडी जहाँ पे ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी, सबसे पहले ये कहाँ पे होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, ये मेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है. और जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें स्पोरोफाइट्स होते हैं. ठीक है, मेन प्लांट बॉडी में क्या होता है? स्पोरोफाइट्स होते हैं. उसी स्पोरोफाइट्स में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बाद में वो पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं. ओके, सो फर्स्टली व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, पहले तो हमें पढ़ना होगा प्री फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को जो हम कवर अप करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आएगा, फर्टिलाइजेशन ओवर होने के बाद दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स और द चेंजेस वी विल सी. सो पहले जब आप देख रहे हो प्री फर्टिलाइजेशन, सो इसमें क्या पढ़ोगे आप? ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल एंड दी फीमेल गैमेट्स के बारे. ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. कहाँ हम लोग? इन दिस प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में हमें और क्या पढ़ना है? गैमेट फॉर्मेशन. ओके, गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसमें पॉलिनेशन पढ़ना है. ठीक है, पॉलिनेशन, गैमेट फॉर्मेशन and male and the female reproductive structure, that all we have to do in this pre-fertilization. ये पूरा pre-fertilization का पार्ट है. ठीक है, ये सारी चीजें हमें फर्टिलाइजेशन से पहले के चेंजेस में देखने मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्री-फर्टिलाइजेशन चेंजेस है. ओके, सो दीज ऑल थ्री आर प्री-फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ठीक है, that the flower undergoes before fertilization. फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आपको दिखने मिलते हैं या क्या क्या चेंजेस होता है ताकि फर्दर आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहे. सो फर्स्ट दिस थ्री थिंग्स वी विल सी इन द प्री फर्टिलाइजेशन. इसके बाद के स्टेप में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन से क्या होगा? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा. उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस पार्ट में भी हम लोग देखना क्या पढ़ेंगे अब? इम्ब्रियो डेवलपमेंट. इम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ओके, देन फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशंस. ओके, फ्रूट्स का डेवलपमेंट पढ़ेंगे. सो ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होगा. सो अभी जो हम लोग डील करने वाले हैं वो है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस. सो लेट्स सी व्हाट आर द प्री फर्टिलाइजेशन
चेंजेस वी कैन सी, और कहाँ होता है ये चेंजेस, ये पूरे जितने भी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इवेंट्स जो स्टेप बाय स्टेप आते हैं वो विल स्टडी. So the male, we know the male and the female part of the flower is playing the main role in the reproduction. Okay, so the male and the female reproductive structure in the flower is what? Androecium and the gynoecium. Androecium is the male reproductive part of the flower and gynoecium is the female reproductive part of the flower. Okay, so what happened in this pre-fertilization changes? पहले तो separation होता है, differentiation होता है and development के roles होते हैं. ठीक है, मतलब फ्लावर अपने अपने रोल्स को पहचानता है कि व्हाट आई हैव टू डू, एंथर को क्या करना है, फिलामेंट को क्या करना है, एंड देन द फीमेल पार्ट में आ जाओ तो स्टिग्मा क्या करेगा, स्टाइल क्या करेगा, दैट ऑल डेवलपमेंट के प्रोसेस ये प्री फर्टिलाइजेशन में होगा और वर्क डिफ्रेंशिएट होता है. ठीक है, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है, हॉर्मोन्स जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, फ्लावर में भी हॉर्मोन्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में, बिकॉज विदाउट दिस वी कैन नॉट सी कि आगे का डेवलपमेंट का प्रोसेस चल पाएगा. सो सेवरल चेंजेस, दैट मीन्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं. उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्लावर में के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आता है. सो हार्मोनल चेंज की वजह से, ओके, हार्मोनल चेंजेस जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. ओके, सो उसके वजह से आप क्या देखते हो, morphological changes. Okay, morphological changes जो हमें देखने मिलते हैं. ओके, सो फ्लावर के जो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, इसमें सबसे पहले हॉर्मोन्स रोल प्ले करता है. इसी हॉर्मोन्स के वजह से प्लांट जो फ्लावर है उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनका मॉर्फोलॉजी चेंज होता है, उनमें वर्क डिफरेंशिएशन आता है. ओके, एंड दे लीड टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम. मतलब पूरे फ्लावर का रोल डिसाइडेड हो जाता है कि किसको क्या करना है. देन फ्लावर का अरेंजमेंट, वी नो फर्स्टली सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. सो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर जो है उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस. व्हाट इज दैट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर? इनफ्लोरेसेंस. ओके, एंड द एंड्रोशियम द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. इनका डिफरेंशिएशन होता है एंड डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट स्टेमेन. फर्स्ट जैसे हमने पढ़ा कि सेपल्स और पेटल्स एक्सेसरी थे, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन स्टेमेन थर्ड वर्ल में आता है, थर्ड नंबर पे आता है. ठीक है, थर्ड वर्ल इट इज. एंड विल स्टडी कि स्टेमेन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं, एंड हाउ डज दिस माइक्रोस्पोरेंजिया लीड्स टू पॉलन फॉर्मेशन. सो वी विल सी. अब देखते हैं सिंपल, ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है, दिस इज द एंथर. ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आता है स्टॉक लाइक, दैट इज फिलामेंट. टुगेदर हम क्या बोलते हैं इन्हें, दैट इज स्टेमेन. वी कॉल इट स्टेमेन. ओके, सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. इसी को अगर आप कट करते हो, ट्रांसफर सेक्शन, इस एंथर का एक ट्रांसफर सेक्शन कट कर लो, यू कैन सी हियर वेरी नाइसली द पॉलन सैक. पॉकेट है, सैक क्या होता है, पॉकेट लाइक. ठीक है, एज वी हैव सीन जो बाइलोब स्ट्रक्चर है हमारे एंथर का, इट कैन बी डिवाइडेड, और आप देख सकते हो उसमें 4 थेका होता है. ठीक है, सो यू कैन सी पॉलन सैक इज देयर, और उस पॉलन सैक के अंदर होगा पॉलन ग्रेन्स. सो स्टेमन को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल पार्ट में जो आप देख रहे हो वो स्टॉक है. ठीक है, और एंथर को हमने क्या पढ़ा, ये बाइलोब्ड है. ठीक है, विच हैज लोब्ड एंड हैविंग 2 थेका, और इसका क्या आपने देखा कि 2 थेका में ये डिवाइडेड है. नेक्स्ट, अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स इज प्रेजेंट. यहां पे एक ग्रूव्स है, एक लाइन है लेंथवाइज एंड सेपरेटिंग द 2 थेका. तो एक दोनों साइड में देयर इज अ 2 लोब स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी द थेका कैन बी डिवाइडेड. The proximal part of the filament
जॉइंट्स, तो प्रॉक्सिमल पार्ट आप क्या बोल रहे हो कि इसी ये जो एंथर है इसका जो एंड पार्ट, इसको बोल सकते हो प्रॉक्सिमल। जो एज यू कैन सी ये हमारा एंथर है, ठीक है, तो लोअर पार्ट जो हो गया वो प्रॉक्सिमल एंड है। So this is proximal part. Okay. So this proximal part is what? It is joining to the thalamus. ये फ्लावर का थैलेमस से जॉइंटेड होता है, ठीक है, ओके, और पेटल से भी जॉइंटेड हो सकता है दिस स्टेमन पार्ट। जैसे नॉर्मल हम लोग फ्लावर जो बनाते हैं, दीज आर द पेटल्स हो गए फ्लावर के, ठीक है। सो जो एंड्रोशियम होता है दिस बाइलोब स्ट्रक्चर, तो ये जहाँ अटैच होता है आइदर ये पेटल से जुड़ा हुआ हो, आइदर ये पेटल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या प्लांट के जो बॉडी है, बेस स्ट्रक्चर है, उससे भी जुड़ा हो सकता है। सो दैट मीन्स ये थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है। ओके, सो आइदर ये थैलेमस या तो पेटल से जॉइंटेड होगा दिस प्रॉक्सिमल पार्ट। ये जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है। और यू कैन से फिलामेंट का जो एंड वाला लोअर पार्ट है वो कहाँ पे अटैच रहता है, या तो पेटल से या तो थैलेमस से। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी शुड नो अबाउट स्टेमन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉर्मली व्हाट वी हैव टू सी कि किसी भी स्टेमन में जितना हम डिविजन्स देखते हैं, सिंपली व्हाट वी हैव सीन, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि एक जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, ठीक है, एक एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का, विच इज अटैच टू द फिलामेंट, ठीक है। सो टुगेदर दिस इज नोन एज स्टेमन। हमने ये भी पढ़ा। इसी पार्ट को अगर आप बहुत डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे देखना एक सेपरेशन है, टू लोब्स आर बीन सेपरेटेड, ठीक है। सो टू लोब्स आर सेपरेटेड एंड हियर दिस पार्ट इज नोन एज कनेक्टिव। इस पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिव। इन डिटेल व्हेन वी विल सी दिस स्ट्रक्चर, इसी बाइलोब स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में देखेंगे। उनके ट्रांसफर सेक्शन अगर कट करते हैं, इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन को कट करके देखेंगे, टीएस ऑफ एंथर। ओके, सो इन दिस वी विल सी कि दिस होल एंथर इज बीन, ये पूरे लोब पार्ट जो है, एक लोब है ये दूसरा लोब है। इस लोब में भी देखने मिल रहा है डिविजन्स। देयर इज अ पार्टीशन विच इज कॉल्ड एज थेका, ठीक है। ये पार्ट, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये है थेका। तो इस थेका के अंदर क्या है, एज यू कैन सी देयर इज माइक्रोस्पोर्स, और यू कैन कॉल इट फर्स्टली माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। सो दिस पार्ट यू कैन कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजिया है ये, ठीक है। तो ये जो डिविजन्स आप देख रहे हो, 4 डिविजन्स, दिस इज नोन एज थेका। ये दोनों पार्ट क्या है, थेका। सो टोटल इन एंथर देयर इज 4 थेका। एक तो वो बाइलोब्ड होता है, और दूसरा दैट मीन्स 2 लोब्स होते हैं, और थेका कितना होता है, 4 थेका, 2 in each lobes. Okay, this is the basic thing about stamen. That means the anther के बारे में, ये TS of anther है। Okay, next the anther is a tetragonal structure. Tetragonal क्यों बोला जा रहा है, tetra means 4, तो in the previous slide we have seen total 4 theca is there, ठीक है। तो एक बाइलोब स्ट्रक्चर का आप देख सकते हो डिवीजन टोटली 4 पार्ट में है, तो दैट मीन्स इट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड्स 4 स्पोरेंजिया। वी हैव सीन स्पोरेंजिया पार्ट, ये पार्ट जो देख रहे हो ये 4 स्पोरेंजिया इज देयर। टोटल 4 स्पोरेंजिया होते हैं जिसके अंदर pollen grains होता है। ओके, सो दिस स्पोरेंजिया इज लोकेटेड ईच एट द कॉर्नर। ये कहाँ पे है, देख रहे हो, एंथर के कॉर्नर वाले पार्ट में होते हैं। 2 in each लोब, दोनों साइड के लोब में जो 2 लोब्स पढ़ा है हमने, ठीक है। सो एट द कॉर्नर यू कैन सी देयर इज स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया विच इज कंटेनिंग माइक्रोस्पोर्स, ठीक है।
तो ये टोटल कहाँ पे प्रेजेंट हो, एक तो 4 होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, ये एक लोब है एंथर का, ये दूसरा लोब है, सो 2 इन ईच लोब यू कैन सी। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है और वो पॉलन सैक बना देता है, एक पैकेट जैसा बन जाता है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया एक पैकेट बना देगा जिसके अंदर बहुत सारे, एक तो वो पॉलन सैक बनाएगा, उस पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे स्मॉल पॉलन ग्रेन होंगे विच इज वेरी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। सो इट विल प्रोड्यूस pollen grains and they are packed with the pollen grains at the maturity. That means जब यंग होगा एंथर तब उसमें आपको ओनली क्या देखने मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, पर स्पोर्स नहीं बने हैं अभी, ठीक है। सो एट द मैच्योरिटी, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तब उनमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। सो हियर एज यू कैन सी, ये तो सबसे पहले आप देख रहे हो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो ऑलरेडी पॉलन सैक में डेवलप हो चुका है। उसके बाद आप देख रहे हो देयर इज, एज दिस इज मैच्योर, ये मैच्योर एंथर है, ठीक है, जिसमें आप इजीली देख सकते हो पॉलन ग्रेन्स आर देयर एंड दिस इज अ लाइन ऑफ डेहिसेंस, मीन्स यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहा है। सो दैट मीन्स पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहा है मीन्स ऑलरेडी ये मैच्योर एंथर का डायग्राम है, ठीक है। इन दिस इजीली यू कैन सी पॉलन सैक के अंदर है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एंड इवन एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, जब पूरे अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं एंथर, तब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, दैट इज नोन एज डेहिसेंस, ओके। अब देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो हमने पढ़ा उसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या पार्ट्स है उसके, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजिया। सो वी विल स्टडी व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम इन सिंगुलर फॉर्म में आप देखोगे तो ये एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या है, हाउ डज इट लुक लाइक, हाउ डज इट वर्क। सो माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, तो 4 लेयर है, ठीक है। टोटल 4 लेयर्स आर देयर। फर्स्टली जो आप देख रहे हो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है। जो सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर आपको देखने मिल रहा है, सो दिस पार्ट इज एपिडर्मिस, ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। उसके जस्ट बाद एक और लेयर है, ओके, सो दैट इज दिस सेकेंड वन लेयर इज एंडोथीशियम। क्या है, एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर को हम क्या बोल सकते हैं, एंडोथीशियम, ठीक है। सो पहला लेयर जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का है, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन एंडोथीशियम। उसके बाद लेयर आता है मिडिल लेयर, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल लेयर आप देखोगे, सो दैट इज हियर यू कैन सी, ये पार्ट जो है मिडिल लेयर का है, ये पार्ट मिडिल लेयर है। इसके जस्ट मिडिल लेयर के जस्ट बाद क्या था, दैट इज एंडोथीशियम। उससे सबसे बाहर में क्या था, दैट इज एपिडर्मिस, ओके। सो थर्ड लेयर इज द मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन इज द टैपेटम। बट ये जो हमने पढ़ा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है नॉर्मली किसी यंग एंथर का, या आप किसी यंग एंथर को जब देखोगे तब आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 स्ट्रक्चर्स जो बेसिक पार्ट है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टैपेटम। सो इसके बाद जस्ट आता है आपका मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद आता है ये टैपेटम। ये पार्ट मिडिल हो गया, ठीक है, जो गैप्स वाले पार्ट है मिडिल लेयर है। उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनका जो सर्कुलर लेयर है दैट इज नोन एज टैपेटम, ओके। सो if we will see what this microsporangium is, अगर ये microsporangium को हम देखते हैं तो how does it work? So first of all इस लेयर को, इस डायग्राम में देख रहे हो एक छोटे से लेयर को, इनका जो आउटर मोस्ट 3 to 4 लेयर्स आर देयर, इन्हें मैग्नीफाई करके वी विल स्टडी, ठीक है, डिटेल्स में इसके बाद देखेंगे, ठीक है। दिस लेयर्स, ओनली दिस लेयर्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, ओके। एंड हियर सेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हो कनेक्टिव,
ठीक है, दो एंथर के जो लोब्स है उन्हें बीच में कनेक्शंस जो आप देख रहे हो, देयर इज अ कनेक्टिव. सो द आउटर थ्री लेयर्स आर द प्रोटेक्शन, दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन. तो ये आपके जो लेयर्स दिख रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, सो दिस थ्री ये प्रोटेक्शन का काम करता है. ओके, ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन. The next, and it helps in the dehiscence of anther and release of the pollen. Pollen sac के breakage में भी help करता है और release of pollen grains. So we can say it helps in dehiscence. Okay, so dehiscence में भी कौन help करता है? This three layers, protection and dehiscence. Then the innermost जो tapetum आप देख रहे हो, this one, okay, as you can see in this diagram also, the innermost tapetum, ओके ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका जो कवरिंग है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, दिस इज टैपेटम. ठीक है, सो दिस टैपेटम गिव नरिशमेंट एंड टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. जो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन सैक है, सैक के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं उन्हें ये टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. So this tapetum provide the nourishment, and in the early stage the center of the microsporangia is filled with sporogenous tissues. That means जब एक young anther होता है, ठीक है, we'll see कि anther जब young है तब उनमें, this diagram we can relate it, ठीक है, जब anther young होता है तो उसमें sporogenous tissues होते हैं. Simply दिस डायग्राम व्हेन वी आर सीइंग, ये हमारे डिफरेंट लेयर्स को जो डिटेल में हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि ये सबसे आउटर मोस्ट वाला एपिडर्मिस है. ठीक है, अगर आउटर मोस्ट वाला एपिडर्मिस था, उसके बाद वाला लेयर था एंडोथीशियम, उसके बाद जो हमने देखा था वो मिडिल लेयर था, उसके अंदर था टैपेटम. सो दिस वन इज टैपेटम, और ये गैप्स जो देख रहे हो ये है मिडिल लेयर. ओके, सो दिस इज मिडिल लेयर. ठीक है, सो दिस थ्री, ये प्रोटेक्शन का काम हमने अभी पढ़ा ना कि प्रोटेक्शन और डेहिशंस में ये तीन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर प्ले करता है. ठीक है, और टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो दिस डायग्राम ऑल्सो वी कैन सी, ये आउटर मोस्ट जो आपको देखने मिल रहा है ये आपका क्या है? एपिडर्मिस है. ओके, इस दिस वन सिर्फ एक थेका का हमने स्टडी किया, इसको पूरे फुल जितने भी एंथर का जो फुल स्ट्रक्चर है वी आर सीइंग. ठीक है, और ये जस्ट आउटलाइन के लिए हमने समझने के लिए एक आउटर मोस्ट लेयर को देखा है इसमें. ठीक है, सो द आउटर वन वी हैव सीन एपिडर्मिस है. उसके बाद अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है ये ग्रीनिश पार्ट वाला, दैट वन यू कैन नेम इट एंडोथीशियम. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट, अब बिलो दिस एपिडर्मिस के जस्ट पार्ट जो आता है अंदर वो है एंडोथीशियम. उसके बाद एंडोथीशियम के बाद ये जो गैपिंग्स देख रहे हो ये है मिडिल लेयर. देन दिस इज टैपेटम, ये पार्ट आप देख रहे हो टैपेटम. ठीक है, अब इस टैपेटम के अंदर क्या होता है? एज यू कैन सी ये टैपेटम है, आउटर मोस्ट वाला, इससे भी आप बोल सकते हो ये भी टैपेटम है इसका, ये भी सर्कुलर आउटलाइन, दिस इज ऑल्सो टैपेटम, दिस इज ऑल्सो टैपेटम. ठीक है, सो दिस टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट. और इसी टैपेटम के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं. ये तो टैपेटम हो गया. इस टैपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज आर देयर. ठीक है, there is sporogenous tissue. ओके, सो स्पोरोजेनस टिश्यूज कहाँ होते हैं? इस टैपेटम के अंदर होते हैं, which produce spores, microspores बनाते हैं. and this part we can named as connective. ओके, सो दिस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है?
connective. Okay, so this is the TS of anther. इससे पहले वाले जो स्लाइड में टीएस ऑफ एंथर देखा वो आउटलाइन हमने देखा था, बट अब डिफरेंट लेयर वाइज कौन सा लेयर होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो ये आपका हमने अभी पढ़ा कि ये प्रोटेक्शन में और डेहिशंस में ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और उन्हें डेहिशंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, और ये टैपेटम क्या करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। ओके, दिस ओनली स्ट्रक्चर वी हैव सीन, इसी स्ट्रक्चर को हमने अभी देखा। ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सबसे पहला वाला एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर आ गया, फिर इसके अंदर टैपेटम है। टैपेटम के अंदर देख रहे हो आप माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं या पॉलन मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। ओके, वी कैन कॉल इट पॉलन मदर सेल्स। ये पॉलन मदर सेल्स है जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, ये एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये यंग एंथर का है। ओके, सो दिस इज यंग एंथर, ANTHER। ठीक है, ये यंग एंथर है। दिस वन इज मैच्योर एंथर। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो मैच्योर डेहिसेंस एंथर का है, मीन्स ये एक मैच्योर एंथर है। एंड इन मैच्योर एंथर यू कैन सी दिस पॉलन ग्रेन्स, एज यू कैन सी, ये देख रहे हो स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स लाइक, सो दीज आर पॉलन ग्रेन्स। और ये चीज अगर आप देखोगे यंग एंथर में, वहां पे आपको ये पॉलन ग्रेन्स नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, इवन पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे डेहिसेस, दैट मीन्स इट इज बीन रिलीज्ड, मैच्योर हो चुका है पॉलन ग्रेन, सो दे आर बीन रिलीज्ड। ठीक है, सो द बेसिक डिफरेंस इन दिस टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये यंग एंथर और मैच्योर एंथर में कोई फर्क भी है क्या? यस, देयर इज द डिफरेंसेस। सबसे पहले हमने देखा, अगेन कम बैक टू द प्रीवियस वन, अगर हम लोग यंग एंथर को देख रहे हैं और मैच्योर एंथर में, यंग एंथर में आपको एपिडर्मिस भी मिलेगा, एंडोथीशियम भी मिलेगा, मिडल लेयर भी मिलेगा, टैपेटम भी मिलेगा। ठीक है, ऑल दिस लेयर विल बी प्रेजेंट। बट जैसे ही आप मैच्योर वाले स्टेज पे आ जाओगे, आपको एपिडर्मिस तो देखने मिलेगा। ठीक है, एपिडर्मिस होगा, उसके बाद एंडोथीशियम भी होंगे। ठीक है, बट जो मिडल लेयर है और टैपेटम है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। ऑलरेडी ये यूज अप हो गया है, पॉलन फॉर्मेशन, पॉलन सैक का जो डेवलपमेंट है उनमें ये जो टैपेटम है और मिडल लेयर वो यूज अप हो चुका है। दैट मीन्स आपको मैच्योर पॉलन एंथर में नहीं देखने मिलेंगे टैपेटम एंड मिडल लेयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंसेस टेबल को हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस कि क्या यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन हमने देखा कि यंग है अगर एंथर, सो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इस तरह वाला डायग्राम हमने देखा था। ठीक है, दिस सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव सीन, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पे, विच इज यंग, जब यंग स्टेज में है एंथर तब। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये भी देखा बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है इनमें, और स्पोरोजेनस टिश्यूज आर प्रेजेंट बिटवीन विद इन दिस माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आगे देखोगे ऑल 4 लेयर्स, जितने भी अभी हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के लेयर्स के बारे में पढ़ा वो यंग एंथर में प्रेजेंट होता है, जो कि वी हैव जस्ट स्टडीड कि एपिडर्मिस भी होता है इनमें। ठीक है, एंडोथीशियम भी होता है, ओके, देन मिडिल लेयर भी होते हैं, देन टैपेटम इज ऑल्सो देयर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या हमने देखा, मैच्योर एंथर में 2 पॉलन सैक होते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट को आप पॉलन सैक बोल सकते हो।
ठीक है, ये एक साइड वाला पॉलन सैक है, ये दूसरा साइड है। पॉलन सैक कितने होते हैं? ठीक है, 2 पॉलन सैक। जस्ट कम टू दी प्रीवियस स्लाइड। ये आप देख रहे हो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा एक सैक है, ये दूसरा सैक है। तो टोटल देयर इज ओनली 2 सैक प्रेजेंट इन द मैच्योर एंथर। तो टोटल 2 पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हो रहे हैं, एज इन द प्रीवियस स्लाइड यू हैव सीन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, बट यहाँ देख रहे हो कहीं पे कोई पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, मैच्योर एंथर में इजीली यू कैन सी दी पॉलन ग्रेन्स। सो एंड हियर मैच्योर में हमने बताया कि एपिडर्मिस होगा और साथ ही साथ एंडोथीशियम होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई भी लेयर, टैपेटम और मिडिल लेयर नहीं होंगे मैच्योर में। क्यों? क्योंकि टैपेटम और मिडिल लेयर यूज हो चुका है पॉलन के डेवलपमेंट में। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के बनने में। सो फाइनली यंग एंथर, जब आप यंग एंथर को देखते हो उसी में आप ये 3 लेयर्स देखते हो। सो बेसिक चीज, सिंपल डिफरेंसेस जो हमने देखा, ये यंग एंथर में एपिडर्मिस भी होगा, एंडोथीशियम भी होंगे, मिडिल लेयर भी होंगे, जो प्रोटेक्शन और डेहिशंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको 3 ऑप्शंस आर गिवन इन द एग्जाम, अगर आपके एग्जाम्स में 3 ऑप्शन दिया है कि विच पार्ट हेल्प्स इन डेहिशंस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम या मिडिल लेयर, तो इसमें सबसे करेक्ट जो आंसर होगा आपका, दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम हेल्प करता है डेहिशंस में। ठीक है, सो डेहिशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर दे ऑल्सो डू, बट सबसे मेजर जो वर्क है डेहिशंस में, ये एंडोथीशियम परफॉर्म करता है। ठीक है, देन टैपेटम। अब आते हैं टैपेटम। वी हैव सीन ये टैपेटम क्या करता है? नरिशमेंट। ठीक है, ये नरिशमेंट में हेल्प करता है। इसके भी ये या तो आप देखोगे बाई लेयर भी हो सकता है, टैपेटम जो है 2 लेयर का भी हो सकता है, या ये मल्टी लेयर भी हो सकता है। सिंपल, टैपेटम को हम इस तरह से बना सकते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अभी हम लोग है। माइक्रोस्पोरेंजियम जस्ट हमने देखा था अभी, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था। दैट माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम डिटेल में देखें, सो वी कैन सी देयर आर द सेल्स। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि टैपेटम का लेयर बनाता है। ओके, सो इसके अंदर और क्या होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, विद इन दिस व्हाट इज प्रेजेंट? स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं विद इन दिस। सो ये पार्ट आपका टैपेटम है, ये पार्ट अंदर इनर पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस वन, दैट इज स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनस टिश्यूज आर देयर, स्पोरोजेनस टिश्यूज। सो या तो ये टैपेटम का जो लेयर देख रहे हो, सिंगल बाई लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है। इसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इस टैपेटम में और क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो पूरे जो पॉलन सेल्स है, उन्हें नरिशमेंट का काम, उन्हें नरिश कौन करता है? दिस टैपेटम। ठीक है, सो इट इज प्लेइंग अ बेसिक रोल इन दिस फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करके एंथर को क्या करेगा? मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, एंथर को मैच्योर होने में हेल्प करेगा दिस टैपेटम। फर्दर अब मैच्योर एंथर या उसके डिटेल में अगर पढ़ना है तो हम अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द सेकेंड लेक्चर। और डिटेल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है। ओके, सो इन द नेक्स्ट lecture we will study about that. So thank you for today.